Okay, what was that moment that you felt like, "Okay, I want to become a wedding filmmaker"? I never wanted to be a wedding filmmaker. I am consciously wanting to work less. Okay. Yeah. That was my first wedding. Your first project under Romil Shah Films. Yes. So how many weddings you do a year? I did 40 weddings last season. उसमें एक जन ने मुझे एक टैटू गिफ्ट किया था, like last day of the workshop, because the people who want you will want you. I'm a morning person, so I wake up 4:35ish in the morning. There, I remember there was a moment in my life जब मैं emotionally numb feel करता था. Creative thing, the art has changed me. Because business अगर मैं करूँगा तो उस mindset से मेरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए. So it is like, have you ever got frustrated with some client or client demands or some requests? Is there a reason behind, like, you are like saturated from the work? Can you differentiate between the guy who teaches, the Romil who teaches, and the Romil who will? I was in 9th standard. Man, I'm so sorry to hear that. It's fine. All right. Welcome to Get in Bed with podcast. I'm your host Shahars, and today we have a photographer and a filmmaker who doesn't just really shoot weddings and anything, but whatever he documents stories and soul within. And he's been featured as a top 10 wedding filmmakers in India. He's been featured in Fearless magazine and many more publications. List doesn't just stop. And bro doesn't only shoot, but he travels, he sings, and he runs a freaking caravan under the name Musafir by Roja. So, 5 years deep into storytelling, the man behind Romil Shah Films and Bordeaux photo shoots under the name Noir by Romil Shah. Let's get in bed with Romil. How are you doing? Hello. Hi. First of all, thank you for doing this. And I think this is the first time we are meeting. Yeah, absolutely. As a personally. Personally, yeah. First of all, till the time I've seen you, I've only seen on social media and stuff. Yeah. And you taking a step and not, because of all the incidents, not killing your passion and not compromising on the thing that you like, that is really inspiring. Thank you so much, man. That means a lot. And I wish you all the best for this, what you've started. Thank you so much. Yes. And yeah. How are you doing, brother? I'm doing very good. I am traveling. I'm going places. और काम थोड़ा कम कर रहा हूँ. Okay. Yeah. Trying to balance the work-life balance kind of thing. Balance तो कुछ नहीं. I am consciously wanting to work less. Okay. Yeah. Is there a reason behind, like, you are like saturated from the work you are No, doing? it's not about saturation. It's more about I just turned 30 on September. Okay. And I realized कि यार 30 तक तो ऐसा हो गया कि I have not explored much of the world and I have not done so many things that I would have done. जैसे मुझे म्यूजिक सीखना है तो मैं एक बार एक गिटार क्लास में गया था और वहाँ पे मेरे साथ 7 साल के बच्चे थे. तब मुझे थॉट आया कि यार मैं 30 साल का हो गया, ये सब चीज़ कब करूँगा मैं. लाइक गिविंग टाइम टू आर्ट, गिविंग टाइम टू म्यूजिक, गिविंग टाइम टू लाइफ, गिविंग टाइम टू ट्रैवल, ये सब कब करूँगा. सो इट हिट मी एंड देन आई वाज लाइक मेरे को इतना, दिस इज माई एक्सपेंसेस एंड इतना मैं कमा लूंगा तो बाकी का टाइम आई कैन जस्ट डू ऑल ऑफ दैट. So you took a step back थोड़ा. Yes. Okay, bye. I took a step forward. I like that. Yeah. I understand that. Yeah, bro. Yes. So what's your day like, Romil? Like, how you, like, what you go through from your day? When I'm in Surat, then most of it actually changes because it happens कि कभी I travel a lot and then I come and बहुत pressure रहता है दिमाग में, जैसे कल था मुझे. Okay. So yesterday it was like I woke up in the morning 6 o'clock. I was in the studio. I was working throughout. फालतू का stress ले रहा था. शाम तक I realized कि यार नहीं मजा आया. Then I met a couple of friends. We chilled and ऐसा होता है. But usual अगर if you ask routine के हिसाब से, then it's more like I wake up. I'm a morning person, so I wake up 4:35ish in the morning. You sleep at? I sleep at 10:30 unless there's any celebration or party or anything. I couldn't remember a day I fall asleep at 10. That is not a good thing. I really feel bad when I'm with people. No, this is also not a good thing. So it's all okay. So I wake up early. अभी मोबाइल लेने का आदत हो गया है. वरना
आई गेट अप, मुझे सबसे पहले मेरा सुबह 5 o'clock से लेके 11-12 का जो टाइम रहता है, दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव आई कैन डू. सो फटाफट मैं नहा धो के आई गो टू स्टूडियो. I finish my best works, not the managerial works, but the creative work. The edits and everything, storyboarding or something. Yes. सब वो टाइम पे होता है. Okay. फिर लंच के बाद either I do time pass, I watch some videos, or I do ये managerial works. Because that time I cannot. Yeah, and 5:30 happens and my mind starts to find a way where I can chill. I can either meet a friend or I can just watch some movie or listen to out music. of the routine only. Yeah, out of the routine. Then I'm home and then I sleep early. I get it, bro. Yeah. All I wanted to ask, let's start a podcast with that question only. What was that moment that you felt like I want to become a wedding filmmaker and started Romil Shah Films? How did it happen? Okay. I never wanted to be a wedding filmmaker. Then what you want? Never. I always coming from you, it's so like I can't believe it. Yes. I'll tell you the exact story how it all happened. I have always been a fan of filmmaking, to be specific, came out of boredom. So I used to go to after Surat. I was like, मुझे college Mumbai करना है. Okay. Because Surat में I was not finding good scope. Not the kind of people I liked. So crowd and everything. Yes. So I felt like I want to go to Mumbai. Mumbai में KC कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ and then वो चर्च गेट मुंबई में एक बहुत ही पॉश एरिया में है and I was coming from your small background सूरत में. तो उधर I remember going first day meeting a couple of friends, making a couple of friends and हम लोग first day of college हम लोग जाते हैं बाहर to have pasta. और हम लोग 4 जन थे और वो पास्ता का बिल आया 3,000 रुपया. That was the time I thought कि यार मैं अगर रोज shit खर्चा तो बहुत नहीं, मैं अगर हैंग आउट करूंगा, अच्छी पार्टी करूंगा लोग में तो बहुत खर्चा होगा. So and मेरे डैड नहीं थे, mom was doing job and all of that. Okay. So I did not wanted to spend much. So अब क्या करूं? So चुपचाप मैं I had a lot of time then. तो मैं YouTube सर्फ करता था. And I started watching a lot of behind the scenes films के जो होते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्ट लगा मेरे को. फिर मैं फिल्म्स में घुसा. मेरे रूममेट्स थे वो इंजीनियर्स थे. Okay. हाँ, तो वो लोग मुझे कुछ ऐसे फिल्म्स देते थे कि ये फिल्म इंग्लिश वाला देख अच्छा है. देखिए. हाँ, उनके पास बहुत ऐसा हार्ड डिस्क होता था वो. True that, bro. Engineers यही करते हैं. Yes. So वहाँ से इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ and then I opted for a film school in Mumbai. Okay. So I was doing film school. I was doing theaters. And we were making a lot of short films. You were acting in the Yes. Damn. Yes. So that all used to happen. And which year you are talking about? Like this is 2013-14. Okay. Yes. So I was doing theaters. I was doing filmmaking. Yeah. And then वो phase जब खत्म हुआ, college खत्म हुआ, then I was living in Warsaw. अंधेरी. Okay. हमको ऑडिशंस देना होता था because acting वगैरह कर रहे थे. So you wanted to go into films like as an actor or? As an actor and filmmaking was very far, but I learned filmmaking. Shit. So मुझे acting करना था. I also signed a गुजराती film COVID के टाइम पे. Yes. So वो सब हुआ and सब अच्छा डायरेक्शन में जा रहा है. एक गुजराती फिल्म मिला मुझे and मैंने 2 साल वो फिल्म के पीछे सब कुछ छोड़ के I was just focusing on the film. मेरा फुटबॉलर का रोल था. So I used to every day play football. मुझे आता नहीं, स्पोर्ट्स मुझे बिल्कुल नहीं आता था. I used to play football every day. दोपहर के टाइम पे then morning फुटबॉल खेला, दोपहर के टाइम पे रिहर्सल्स किया and then शाम को वापस फुटबॉल. All of that happened. Tight schedule. Yes. And then सितंबर में हमारा स्केड्यूल था भूटान में शूट करने का. फिल्म की शूट चालू होने वाली थी. Okay. उसके पहले हुआ कोविड. Shit. And then it got shut down मतलब. Yes. अरे यार. प्रोड्यूसर्स ने पैसे ले लिए ना, फिल्म never happened. फिल्म का वो सब भी हो गया था, लॉन्च हो गया था. What was the name of it? Mo. It was a गुजराती फिल्म. तो वो सब हुआ and कोविड happened, so फिल्म हो गया बंद. Yeah. अब वापस थोड़ा पीछे चलते. जब मैं मुंबई में ये कर रहा था ऑडिशंस वगैरह,
तब आई मेट अ फ्रेंड हु टोल्ड मी कि यार तू इसमें आ जा वेडिंग में, Okay. फ्रीलांसिंग कर ले, अच्छा खासा यू विल मेक। Yeah. एंड तब तक वेडिंग का मुझे कुछ था नहीं, बस एक बार मैंने मेरी पूजा हु इज माई वाइफ, Yeah. तब उसके रिलेशन में किसी ने बोला था टू मेक अ फिल्म, उनका प्री वेडिंग उस टाइम, मुझे पता नहीं प्री वेडिंग क्या होता है, तो जब देखा तो इट वाज मोर लाइक अ म्यूजिक वीडियो। मेरे पास तब निकॉन 3200 था Yeah, yeah, absolutely. कैमरा, लाइक मैं कर दूंगा। सो वो आई टुक एंड दे वर लाइक मैं आई विल गिव यू 5000, एंड उस टाइम मेरे 5000 वाज अ वेरी बिग Big अमाउंट amount, कि भाई 5000 मिलेंगे मेरे को इतना करने का। या सो आई मेड दैट फिल्म, उनके वेडिंग में वो लोगों ने प्ले किया In Nikon D. निकॉन, हाँ सारा इफेक्ट्स डाल दिया वो ना, वो होता है ना स्प्लिट स्क्रीन में Yeah, डबल yeah, डबल yeah. वो दिख रहा है, वो सब ऑल ऑफ दैट आई डिड ऑल ऑफ दैट। उसके बाद उनके वेडिंग में एक फोटोग्राफर थे जिन्होंने बोला कि किसने बनाया है, एंड ही कॉन्टेक्टेड मी, Damn. and then he was like you come, you work for, I'll give you my camera. He bought me a 5D Mark 4, Okay. and then he told me कि you just come, हमारा टीम रहेगा, तो अपने हिसाब से शूट कर ले, देखो जो करना है कर ले। ही हाँ, तो I used to shoot for him, That was a break only, मतलब. not break, that was free, like Okay. free and more. But you got a chance to shoot wedding that first time, no? Yes, Yeah. but I was exploring, and then Yeah. this friend came मुंबई में, and then he was like कि तू आजा, तेरे को दिन का मैं 8-10 हजार रुपए दिला सकता हूँ, Okay. एंड तू एक मंथ में इतना कर लेगा तो तेरा आराम से बाकी का टाइम तू मुंबई में स्ट्रगल कर सकता है। लाइक गुड आइडिया। Yeah. Balance हो रहा है. हाँ, तो तब तक अंडरग्राउंड में कर रहा था, लाइक मैं कहीं पे अपना काम नहीं डालता था, जस्ट पता था। मैंने किया उसके साथ 1-2 प्रोजेक्ट ही किया, बट Okay. उसके पहले जो स्टूडियो वाला था Yeah, उसके साथ आई यूज्ड टू वर्क, लाइक बहुत सारे वेडिंग शूट कर लिए थे। Okay. बट देन कोविड, ये सब कर रहा था, कोविड हैपेंड, एंड आई स्टार्टेड, मतलब एक वो होता है ना कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाँ, तो आई यूज्ड टू वेक, कोविड में आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 in the morning, मेरा आँख खुल जाता था, मेरे को पता नहीं है। सो वो जो एक टाइम होता है 3 बजे से लेके मॉर्निंग का, सनराइज का, दैट यूज्ड टू बी माई टाइम। तो एट दैट मोमेंट मैं कैमरा कंप्यूटर चालू करता था, और उसमें मेरे इसमें जितने भी मेरे हार्ड डिस्क था, मैं जितना भी शूट किया था उसमें मैं आई यूज्ड टू मेक लाइक 1 minute 2 minute वीडियोस, कुछ भी ऐसा फिल्म नहीं बनाता था, बट ऐसा लग रहा है कि यार ये मोमेंट में इसके भाई ने ऐसा ऐसा किया था, एंड वो दोनों का रिलेशन बहुत डायनामिक्स बहुत अच्छा था। सो वैसा कुछ 1 मिनट का बना दिया। She's a tough cookie, like I say. She's a fighter. She's the youngest in the family. सो ये सब हुआ एंड मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। Okay. सो उसमें भी ऐसे ही मैंने खुद ने मेरी खुद की एंगेजमेंट तो मैंने एडिट कर लिया था, and वो सब इंस्टा में डाला था। It has been a long journey of 8 years. 8 years. And this is happening. Then पूजा once told me कि एक बार तू अलग से, इतना अच्छा काम है, I've never seen wedding में ऐसा काम, तो तू इंस्टा वगैरह में डाल तो सही कहीं पे। मैं बोला नहीं मुझे, आई डोंट वांट टू बी नोन एज अ वेडिंग फिल्म मेकर, या बिकॉज मुझे कभी नहीं करना था, मैंने कभी देखा ही नहीं था यार। मुझे, मेरे लिए वेडिंग फिल्म वाज मोर कि वो लहंगा लटका हुआ है, हाँ, गेटिंग रेडी, एंड ऐसे ही होता है स्टार्ट, पहले सब ऐसे ही फिल्म चलते थे, डेकोर का शॉट आ गया, लहंगा का शॉट आ गया, ये इसका शॉट आ गया, तो इट नेवर एक्साइटेड मी। तो ये सब हुआ, मैं बोला ठीक है चल डालता हूँ। शी फोर्स्ड मी एंड आई वाज लाइक ठीक है, आई विल मेक अ पेज एंड आई विल पुट इट। बहुत बेसिक चालू किया, रोमिल शाह फिल्म्स, कुछ दिमाग नहीं ऐसे, क्योंकि ऐसा कुछ बिजनेस सोचा ही नहीं था। आइडिया वाज यू जस्ट गिव इट अ शॉट, मतलब आइडिया वाज कि मैं ऐसा कुछ अभी बना रहा हूँ वो डाल दूंगा उसमें ऐसा। फिर उसमें मैंने अपना एंगेजमेंट फिल्म डाला, एंड वो 2-3 जगह, गुजरात वेडिंग, सूरत वेडिंग, ऐसा कुछ तो था पेजेस, वहाँ में वो लोग ने पिकअप किया एंड उन्होंने पोस्ट किया, एंड वहाँ से किसी क्लाइंट ने देखा, मतलब किसी कपल ने देखा, एंड दे अप्रोच्ड मी। मैंने बोला कि ओह माय फर्स्ट वेडिंग ऑर्डर, सो आई वाज लाइक ओके, मैंने लगा कि करते हैं, इसमें क्या है, लाइक व्हाई नॉट। बट आई रिमेम्बर फर्स्ट वेडिंग में भी इट वाज मोर लाइक आपका बजट नहीं है, ठीक है,
मैं आपको इतना ही दूंगा, क्योंकि उनका बजट वो सम Okay. for 2 day. So I told them कि आप मुझे क्यों हायर कर रहे हो, because you like that film. आपको That ऐसा kind कुछ of work, आपको कुछ yeah. ऐसा करके मैं दे दूंगा 4-5 मिनट का, 7 मिनट का, Mm-hmm. जो मुझे लगेगा आपकी वेडिंग में, and I'll be the single guy shooting your wedding because you don't have the budget. Yeah. So they were okay with that. Okay, so you shot by yourself? Yes, single-handedly I shot that wedding, and that was my first wedding. Your first project under Romil Shah Films? Yes, and it was a वराछा में शादी थी, गुजराती प्रॉपर काठियावाड़ी गुजराती कपल, बट वो स्टाइल में जैसे मैंने शूट किया था, इट पिक्ड अप, लाइक सबको लगा कि यार ये ऐसे वेडिंग में है, ये इसने ऐसे कैसा कर लिया. वहां से लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया. फिर दैट्स हाउ वेडिंग्स हैपेंड, एंड वो फिर बजट शिफ्ट होता गया, बढ़ता गया. फिर a lot of creative people started approaching me to shoot their wedding, और फिर अभी जैसा है वैसा है, चलता गया मतलब. चल रहा That's how है. it started. That's how it started. The first wedding you shot by yourself only, and now you have a team of... We are 10 people. Shit man, that's crazy भाई. Yes. This is crazy story मतलब. I never thought about this कि ऐसा भी शुरू हुआ होगा Romil का. So, you know, I So never. it is like if you have to see, I always watch your film and I feel like कि बहुत raw है, बहुत ही authentic way में जा रहा है. So how did you achieve that kind of a look in your films? Yeah. So I told you the reason for not joining wedding Yeah. was because मैंने वही सब देखा था जो नहीं होना चाहिए. नहीं होना चाहिए. कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैं वेडिंग शूट कर रहा हूँ, तो वेडिंग्स में अगर मैं सिर्फ अटेंड भी करता हूँ तो आई सी सो मेनी इमोशंस. मेरे बाजू वाली चाची कुछ बोल रही है, कोई अंकल आके हैप्पीली यू नो ही इज इन हिज वेरी जॉयस मोड, कुछ भी. तो मतलब यहाँ पे इतने रियल इमोशंस मिल रहे हैं, तो हम जो रियल नहीं है उसी को क्यों दिखा रहे हैं. दैट वाज द रीजन टू नॉट स्टार्ट वेडिंग फिल्म मेकिंग. एंड फिर मैंने ट्राई किया टू मेक इट एज रियल एज इट इज. जो कुछ आपने देखा होगा, मैं कुछ ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं करता, नथिंग. इट इज जस्ट मैंने जो देखा मुझे वो दिखाना है लोगों को. दैट्स इट. Yeah. हाँ, अब वो That's क्या how it देखा, becomes so raw. एग्जैक्टली मैंने वो क्या देखा मुझे वैसे ही दिखाना पड़ेगा. इफ यू विल नरेट द सेम स्टोरी, यू विल शो व्हाट यू हैव True that. done. So it will be always different क्योंकि वो आपने जो देखा वही दिखा है. Yes, so that is why it is very real, very raw, very simple. कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं. And people loved that. Yeah. And that's what makes Romil Shah film. Yes, That's yes, crazy, yes. bhai. Unbelievable. So it is like, what is your process like from pre-production to post-production? For a film. Meeting a client to going into wedding and then editing a film. So I'll tell this in two different parts. Yeah. From a business point of view and from Yeah, absolutely. and project art project point form of view, yeah. So first of all, if any client comes, if I see that he or she, they are a potential client in terms of commercials and in terms of content. Okay. So first of all, that filtration happens. Okay. कि अच्छा ये तो बहुत ही यूनिक वेडिंग है. जैसे I did a lesbian wedding. क्या कहे आंसू भीगे काजल से. तो वो when they came to me and तब मुझे लगा कि यार I have never shot a lesbian wedding. And this is where you should be a Romil मतलब. Yes, and this is my playground and this is where ये रोज नहीं आता. नहीं. तो उस टाइम पे आई विल नेवर थिंक यार ये मेरे बिजनेस को फायदा नहीं कर रहा है तो मैं ये जाने देता हूँ. उस टाइम पे आई विल बी मोर लाइक Let's create it मतलब. हाँ, मैंने कितने वेडिंग्स में कपल को ऐसा बोला है कि I want to shoot the wedding. If you have approached me, that means you have liked my work and I want to do that wedding. You give me a budget and I'll do it. Because lesbian weddings बार नहीं आते. Temple weddings जो छोटे जैसे मैंने किया था, very intimate भुवनेश्वर उड़ीसा में किया था, 6-7 जन की वेडिंग थी. वैसे वेडिंग्स बार देखने नहीं मिलती, तो उसमें फिर you cannot, फिर पैसे नहीं दिखते वो सब वेडिंग्स में. Yeah, so when this happens, वो filtration हो गया, then you know that you are getting good content इस wedding से. So एक बातचीत होती है क्लाइंट के साथ. अगर सूरत से है तो यहीं पे बात करेंगे, बट अगर नहीं होंगे तो इट विल बी अ जूम कॉल.
Zoom call will, I never ask Zoom call में कि what is your story. That is the biggest mistake जो मैंने realize किया पहले. Okay. हाँ, because पहले मैं ऐसे ही पूछता था कि What is your love what is your story? story, and- क्या है, तो वो सब कुछ बता देते थे. अब क्या होता है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, आपने कुछ मुझे नहीं बोला कि यार ये क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आप ये बताना, वो सब नहीं है. वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट इज व्हाई दिस इज सो फ्रेश. सेम हैपेंड मेरे वेडिंग फिल्म में. अगर मैं उसको सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस वापस इंटरव्यू के लिए पूछूंगा तो वो उतना फ्रेश आएगा ही नहीं. सो इसीलिए मैं कभी वो नहीं पूछता कि हाउ डिड यू मीट, व्हाट इज योर स्टोरी. मैं बोला ये सब हम बाद में बात करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा. नाउ यू टेल मी. मैं सबसे पहले बोल देता हूँ, यू आर द राइटर ऑफ योर स्टोरी, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द राइटर. आई एम जस्ट अ मीडियम. क्योंकि उनकी स्टोरी है यार. उनकी स्टोरी मैं 2 दिन में कितना दिखा पाऊंगा. अगर वही राइटर बनेंगे तो मुझे बोलेंगे कि यार रोमिल हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक दूसरे को डायरी लिखते थे, हम लोग ये करते थे, तो दे आर मोर एक्साइटेड. ये सब बातें उनसे निकलवाता हूँ. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट इज व्हाट मेक्स योर फिल्म डिफरेंट, राइट? डिफरेंट, या. तो वो सब हो जाता है. तो वी मेक अ ग्रुप जहाँ पे वो लोग ये सब करते रहते हैं. हाँ, शेयर करते रहते हैं कि अच्छा हमने ये किया था. जैसे एक कपल को मैंने ऐसे शूट किया था, उन्होंने ये हमारा डोसा स्पॉट है. हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जस्ट वहाँ पे गए, 1 घंटा फन किया. उन्होंने डोसा खाया, हमको खिलाया, ऑल ऑफ दैट वी शॉट दैट. बट how important that becomes for them. True that. They started again from that place only. Exactly. So ये सब चीजें कपल ही निकालते हैं. So that is done. Now we have a clarity of things कि यार ये अच्छा ये कपल ये करता है तो ये चीजें कर सकते हैं. उसमें से डुएबल क्या है. जैसे अभी एक कपल है गोवा में. They are into this cacao ceremony. If you know वो स्पिरिचुअल एक सेरेमनी होता है ककाओ मेडिसिन से. सो दे आर इनटू दैट. सो हमने ऐसा सोचा है कि गोवा जाएंगे. विल टेल देम, अरम्बोल में बहुत ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ये सब होता है. सो विल टेल देम टू डू द सेरेमनी, विल शूट द सेरेमनी and then we'll connect it with the wedding. That's कितना crazy, beautiful लगेगा. बहुत beautiful. हाँ, it is like a poetry in motion only. Exactly. So ये सब चीजें brainstorm होता है and then when the actual day happens, wedding day, वेडिंग के दिन हम कुछ एक्स्ट्रा सोच के नहीं जाते. हाँ, वेडिंग डे के दिन हम जब जाते हैं तब वी डोंट डू अ लॉट ऑफ प्री प्रोडक्शन बिकॉज इनिशियली कमिंग फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, इनिशियली आई ऑलवेज यूज्ड टू डू एवरीथिंग इन पेपर कि भाई ये करना है, यू मस्ट बी नोइंग इट. Absolutely. हाँ, सब प्लान करके जाते थे. पर वेडिंग एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है. कुछ भी नहीं होता. सही. नेवर. और कुछ भी करके जाओ कुछ नया ही होने वाला है. एग्जैक्टली. सो इसी चक्कर में मैंने ब्लैंक, आई स्टार्टेड गोइंग वेडिंग्स विद अ ब्लैंक कैनवास ओनली. कुछ नहीं सोचना, जो हो रहा है उसको बस एज इट इज रिकॉर्ड करो. आपको जो क्रिएटिव करना था आपने कर लिया. वेडिंग में अपने एक्चुअल चीज रिकॉर्ड, जो हो रहा है वही करना, वो रिकॉर्ड किया. अब आपके पास इतना सारा डेटा है, फिल्टर करो, स्टोरी लिखो एंड मेक इट एज एंड कनेक्ट विद दैट थिंग व्हिच यू जस्ट कनेक्ट द डॉट्स. सो दैट इज द होल प्रोसीजर. I like this because like this is a different, it's very kind simple, of phenomenon, very simple. Yeah, because weddings अपने कंट्रोल में होते नहीं. तुम क्या लेके जाओगे उसमें, मतलब क्या दिमाग लेके जाओगे, कितना ही सोच के जाओगे. Exactly. बट आपके कंट्रोल में, लाइक हम लोग ऐसे कपल सेशंस वगैरह करते हैं तो वो एक कंट्रोल में रहता है. True that, because वो वेडिंग के पहले ही हो रहा है. हाँ, उसमें जो करना है कर लो ऐसा. You have been into 5 years हुआ ना इसमें. Yes. तो like what was that favorite wedding of yours since 5 years? There are 2 weddings that is one of my favorite. एक है भाविशा. So भाविशा की स्टोरी भी ऐसी है कि it was an arranged marriage and भिलाई ऐसा कुछ तो नाम है. ऐसा एक गांव है and उसके अंदर वेडिंग था. तो वो एक प्रॉपर वाड़ी होता है ना गुजराती में. So वैसे वाड़ी में शादी था. So it was my second project, I guess. ડર લાગે છે, થોડુંક અનકન્વીનિયન્ટ લાગે છે કે નવી જગ્યાએ જઈશ તો શું, અને એ પણ મારા માટે અનનોન, મતલબ ફેમિલીવાળા અનનોન છે, તો બધાને મેચ થશે કે નહીં. अब सारे फंक्शंस हो रहे एंड रात को डिनर पे भाविशा के डैड आते हैं मेरे पास एंड हर डैड इज लाइक
guys, you are so amazing, I really enjoyed working with you, and please have food. Yeah. मतलब वो एकदम गांव में वैसे वाले अंकल थे, but he was talking so fluently and so nicely. Yeah. मैंने ऐसे रैंडमली बोला कि यार अंकल आपका इंटरव्यू तो लेते हैं हम लोग, चलो. And when I took his interview, Bhavisha was paralyzed. Okay. Yes, and उसका एक हाथ नहीं काम करता था. So he got so emotional, दिल से बातें की. And वो चीज फिर मैंने वही चीज फिल्म उसके ऊपर फिल्म बनाया मैंने. Yeah. And it is really close to my heart. एक वो फिल्म था और एक था हैप्पी सैड फीलिंग. उसके लिए चीज़ें ढूंढना मैं शायद बहुत ज़्यादा मिस करूँगी. उसको अपनी चीज़ें खुद ही ढूंढनी पड़ेंगी अब. Which is about मैंने उसमें लिखा भी है फिल्म के नीचे, narrated by गजाला परवीन. Oh yes, I remember that. Yes, so that वो आंटी है गजाला परवीन, वो कैसे फील कर रही है वो तंजिल जा रही है तब. So that was my favorite. That is still ब्यूटीफुल my favorite. ब्रदर यार. Yes. लाइक ऐसा लगता है कि तुम डे टू डे बेसिस पे कितने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज विटनेस कर रहे हो. मतलब 100%. that, and is this like the business shaped you in any kind of a way, like you were before something else and now you are something else? This is something Yeah, like that? I won't call it business has changed me. I will call it the creative thing, the art has changed me. Because business अगर मैं करूँगा तो उस mindset से मेरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है, ये मेरा डे टू डे काम है मेरा. बट जब आप कोई भी आर्ट क्रिएट करते हो, that should move you, मतलब in any way. you are giving your heart and soul to anything. तो तब बहुत इफेक्ट करता है. तब लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मेहनत, इतनी मेहनत की मैंने इसके पीछे. इट्स मोर अबाउट कि इसके अंदर मेरे कितना इमोशंस जा रहे हैं, what you are leaving behind, like after कितना. the project. हाँ, आई रिमेम्बर देयर वाज अ मोमेंट इन माय लाइफ जब मैं इमोशनली नंब फील करता था, बिकॉज शूट के टाइम पे आपने इतना एक्सट्रीम इमोशंस देख लिया होता है, इतना प्यार देख लिया होता है, इतना सैडनेस देख लिया होता है, इतना एफर्ट्स डाल देते हैं कुछ ही दिनों में. हाँ, और वो फिल्म एडिट क्योंकि मैं एडिट भी करता था, खुद ही करता शूट भी करता था, तो एडिट के टाइम पे भी लग रहा है यार कितना डीप बातें हुई. एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो कि ये सब चीजें नॉर्मल लगने लगी कि हाँ ठीक है, ये हो गया है, ये सुन लिया है, ये कर लिया है. सो इट मेड मी इमोशनली नम्ब फॉर सम टाइम. दैट्स व्हाई आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक अ ईयर एंड आई नेवर एडिटेड अ फिल्म फॉर 1 year. And that's how you came out of that numbness, right? Yes. So now I know कि it has to be a good balance. You have to do other things too, not only just. And it's not only about films. If आप कोई भी आर्ट फॉर्म कर रहे हो, True that. You're gonna तुम get भूल burned जाते हो. out. Like after तुम some भूल time. जाते हो. Yeah, Yes. सही बात है. So It makes you forget like कि हाँ भाई तुम भी कुछ मतलब हो मन करते हो. Exactly. I understand that. Exactly. So it is like, have you ever got frustrated with some client or client demands or some requests? I have not got frustrated. I have started putting a price on everything. Bro, that is so straight up answer, and that is such a good solution. Yes, so it has happened. I give very limited deliverables to client, and they are like, अरे ये तो हमको ये भी दे रहे, ये भी दे रहे, ये भी दे रहे, सब दे रहे. So I'm like, okay, I am also giving if you want, but there is a small section of add-ons. प्राइस देख लो और जो ऐड करना है मैं सब कर दूंगा. अब तो वो आला काटे मेन्यू होता है, आप डालो आपको जो डालना है, सबका प्राइस है. But still, like, what is the most ridiculous request a client had ever said to you? Like, भाई ये कर दो या ये चेंज कर दो या ऐसे करना. चेंज नहीं. आई रिमेम्बर वन अप्रोच दैट वाज वेरी वियर्ड टू मी. वो ऐसा साल था जब हम टॉप 10 में आए थे. 2023 if I am not. I guess 2024 में. Yeah. So he hired us because we were in the top 10 just to show off their guest कि हमने किसी top 10 वाले को बुलाया है. That was just to show it off, like. Yeah, that was, and the most weird thing that he told me on phone was कि रोमिल भाई आपका आर्ट वगैरह तो सब सही है, हमने कितना पैसा खर्चा किया वो दिखाना है बस. That was very weird. So I was like ठीक है. वो उस वेडिंग में इतना अच्छा पैसा मिला मुझे, बट those 3 days I was like यार टर्न ऑफ कर देता, ये नहीं करना है मुझे. हाँ यार सही बात है. So that was very weird. फिर ऐसे इंसिडेंट्स हुए where the bride has exactly copied हमारे इंटरव्यू के स्पीचेस
That is very weird. The दूसरे फॉर्म्स दूसरे लोग. हमारे खुद के वेडिंग, सो फॉर एग्जांपल एक ब्राइड ने हमको बुक किया है, Okay. और एक मैंने एक इमोशनल फिल्म बनाया है किसी ब्राइड के ऊपर, दैट कोई ऐसा फिल्म है जहाँ पे ब्राइड अपना घर छोड़ के जा रही है, हाँ. वो सेम एग्जैक्ट लाइंस ये वाली ब्राइड अपने फिल्म अपने Okay, interview वो में पुरानी वो देख के वो सेम बोलने की कोशिश कर रहा है. अरे, कोशिश क्या, सेम लाइन बोल ही रहा है वर्ड टू वर्ड, एंड देन दैट इज वेरी वियर्ड फॉर मी कि यार कॉपी मत करो. कॉपी भी नहीं की, ये तुम्हारा वेडिंग डे है. हाँ. बहुत लोग को वेडिंग भी इसलिए करना होता है क्योंकि अच्छी वेडिंग फिल्म चाहिए. दैट इज आल्सो वेरी वियर्ड. And today it's all about content, like हाँ, does they're it ever calling it frustrate you? content. हाँ, और मतलब वेडिंग को तुम कंटेंट कैसे बना सकते नहीं हो सकता हो? है. इट इज सच अ प्योर एंड रॉ थिंग जो तुम जिंदगी में एक ही बार करोगे होपफुली. मतलब हमारे टीम में सबसे ज्यादा जो हम लोग काम करते हैं, दैट इज ऑन द लॉन्गर फिल्म्स दैट वी मेक. द डॉक्यूमेंट्रीज एंड दैट इज नोवेयर. मैंने 1 या 2 फिल्म यूट्यूब में डाली है 40-40 मिनट वाली. बाकी देयर इज नॉट अ सिंगल फिल्म दैट वी हैव पुट एनीवेयर, बट Okay. हम लोग अपना 90% पूरा एफर्ट उधर डालते हैं. सो व्हाई यू आर नॉट पुटिंग इट आउट? इज दैट लाइक यार एक तो आई समटाइम्स आई फील कि किसी क्लाइंट का इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग. या आई अंडरस्टैंड दैट. या 1 घंटा में सब कुछ तुम दिखा रहे हो, उनको बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होता. और दूसरा है कि 1 घंटा समटाइम्स आई फील अभी के पब्लिक के लिए 1 घंटा इज बहुत है. बहुत ज्यादा. 10 सेकंड भी अभी Exactly. रहा ही नहीं है. इन लोग का पेशेंस ही नहीं रहा है. Exactly. So that is the reason I don't feel like I don't want to feel disrespected by putting my effort to a place where And then it's not getting recognition or the recognition भी नहीं है. मतलब कुछ लोग फीडबैक भी अच्छा नहीं आया. हाँ, और इतना कुछ दिखाना is also I feel कि ये थोड़ा पर्सनल ठीक चीज है, है. मतलब, Yeah, weddings are personal. I feel that. I understand absolutely. Yeah. So how many weddings you do a year? On an average? I did 40 weddings last season. 40. But this season I am cutting it down to 5 or 6. Man, that is like a 10% of it. Yes. Season, not year. Okay. Season, yeah. Season, okay. This is like 3 to 4 months. From November to March. नहीं, Feb. Okay. Feb end, yeah. Yeah, absolutely. So थोड़ा वो कम करके दूसरी चीजें बैलेंस करनी है. I get it. And I've seen on Instagram you do screenings as well, right? For films for the clients. Can you share any kind of experience you have had? Because it is very personal and very heartfelt thing जब client पहली बार अपनी फिल्म देखता है. अभी recently ऐसा हुआ था. So this film happened to have a very spiritual connection Okay. with everyone. So it was an arranged marriage. And कोई भी वेडिंग फोटोग्राफर का आप अगर बोलोगे कि यार अरेंज मैरिज है, पहले तो मुंह गिर जाता है उनका कि यार कंटेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है. बट व्हेन आई मेट देम, It is never like that कि कुछ हाँ, story तो जब रहने ही उन्होंने वाली ऐसा है. बताया ना मुझे कि वो लोग गाड़ी में जा रहे थे और उनके जो नीस थी, उन्होंने उनको बोला कि रकुमाई सॉन्ग प्ले करो अबाउट विट्ठल एंड रकुमाई. Okay. तो वहां से उन्होंने अपना पूरा वेडिंग इन्विजन किया. उस वेडिंग में ऐसा हुआ कि जो नीस थी, बच्चियां थी दोनों, उन्होंने ड्राइंग बना के दिया उनको बिफोर द वेडिंग. Before the wedding, okay. आफ्टर द वेडिंग आई हैव द एग्जैक्ट सेम शॉट. एंड वो शॉट ऐसा है कि ब्राइड दोनों नीस के साथ चल के जा रही है और वो पीछे से एक शॉट लिया हुआ है, और वो स्केच था बच्चे का, वो सेम स्केच का शॉट है मेरे पास, एग्जैक्टली सेम तरीके से. The real shot from द this रियल picture, शॉट, bro, that is that was beautiful. not planned, but वो That मिला happened मुझे. मतलब वो. हाँ. तो वो एक चीज रहा. और दूसरा एक चीज था कि उसी वेडिंग में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि हम लोग जब भी मिलते हैं ना, एक प्लेन जाता है ऊपर से. एंड उस वेडिंग में हम लोग बड़ौदा से थोड़ा आगे कोई एक जगह था, चंपानेर हेरिटेज रिसोर्ट. Yeah, I know. हाँ, तो उधर हम लोग शूट कर रहे थे. वहां पे नियर बाय उतना कुछ वो नहीं है. नहीं है. बट सुबह हमने उनका इंटरव्यू लिया, तब एरोप्लेन गया. एंड ऑन द एंट्री वो लोग ब्राइड एंटर हो रही थी, ग्रूम इधर वेट कर रहा है और उसके ऊपर से एरोप्लेन जाता है. सो वो फिल्म जो मैंने बनाया, आई कैप्चर्ड बोथ द थिंग्स. एरोप्लेन को भी कैप्चर Man, किया. that is so beautiful, yeah. हाँ, so that become very special.
So इट इज लाइक एन सिग्नल के भाई हाँ ये हो रहा हाँ, तो सही हो ऐसे रहा है वेडिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. एंड इट इज लाइक यू हैव टू बी सो प्रिपेयर्ड टू डॉक्यूमेंट समथिंग लाइक दिस जो ऐसे एकदम रैंडम हो रहा है. I tell this to my team कि when you are documenting anything, Yeah. you should have 10 eyes, not only 2 अवेयर eyes. ऑफ योर सराउंडिंग के भाई कहीं पे कुछ भी हो रहा Everything, है. आँख कान नाक मुंह हर जगह से. सो हाउ इज रोमिल लाइक ऑन अ वेडिंग इन वेडिंग्स? Stressed. Stressed. Always मुंह पे 12 बजे होता है. अरे बाप रे. एंड 2 फेज होता है, या तो वो या तो एकदम लाइक अ स्मॉल किड जिसको अपना प्लेग्राउंड मिल जंपिंग गया, अराउंड एंड रनिंग अराउंड. अरे ये मिल गया, ये अच्छा मिल गया, ये शूट कर लेते, वो शूट कर. सो ऐसा देयर आर 2 फेजेस. बहुत एक्सेंट्रिसिटीज है ना, मतलब ये एक एकदम वैसा है और एक एकदम Yes, वैसा. yes, मैन yes. दैट इज क्रेजी. स्ट्रेस क्योंकि यार मेरे से होता नहीं है मैनेजरियल Yeah. काम. तो मैं कोई मेरे को 2 काम दे देगा ना कि यार ये टीम यहाँ से बुलाना है, वो टीम उधर फंस गई है, तो मेरे को बहुत स्ट्रेस हो जाता है. बट व्हेन यू लीव मी एज आई एम, देन यू विल डू द बेस्ट. Yeah. एंड आई बिलीव दैट कि क्रिएटिव पर्सन को बांधो मत कहीं से, Yes. तो छोड़ दो. Yes, वो yes. आपको वही करके देगा जो आपको चाहिए. Exactly. एक्चुअली में यू डिडंट नो दैट यू नीडेड दैट. एग्जैक्टली. I understand that. Brothers, like see wedding filmmaking industry बहुत बदल गई है. Yes. Since 2020 to 2025 बहुत बदल गई है. Yes. So one thing you love about wedding filmmaking industry and one thing you hate about it. Can you tell me? I love the fact that there is so much honesty in wedding filmmaking. Okay. As in client perspective or the team like Or shooter's perspective? as an environment also, there are a lot of Okay. honest emotions Absolutely. that you can see and feel. feel. And as a filmmaker, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एज अ फिल्म मेकर व्हेन आई से मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं किसी एक्टर को एक इमोशन दे के एक्टिंग नहीं करवा रहा हूँ. वो चीजें रियल निकल रही है. Naturally flow ही हाँ, हो रही तो है, तो जब उस एनवायरनमेंट मुझे डाल दिया गया है जहाँ पे इतने चीजें रियली हो रही है, इतने इमोशंस सच में फ्लो हो रहे हैं जो कोई एक्टिंग नहीं है, तो इट्स लाइक अ किक. एंड तब लगता है कि यार ये कितना रियल और ऑनेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में कर रहा That is your addiction kind of a thing कि मेरे को rawness दिखाओ. हूं. So that is the good part. Good part, yeah. And the bad part, I would say कि people are not realizing this thing. Filmmakers and photographers and the clients, they are wanting to make some content from their Reels wedding. बना दो, ये कर दो. Wanting to make some. एक होता है कि तुम्हारे वेडिंग में कुछ हुआ और हो और गया. वो हो गया, हाँ. पता चला हो गया. और एक होता है कि तुमको कुछ क्रिएट पहले करना से सोच है. के ही कर रहे हो मतलब. हाँ. So and the motive is कि वायरल जाना है. That is very weird for me. I have couples जो मुझे आके बोलते हैं रोमिल भाई ऐसा कंटेंट बनाएंगे कि एकदम वायरल हो जाए. मुझे एक बार हिट होता है मेरे दिमाग में कि क्यों वायरल होना है. ओके होगा भी क्या मतलब. चलो ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आपका काम है Yeah, सोशल okay, मीडिया. that is okay, yeah, absolutely. बट यू आर अ नॉर्मल पर्सन Yeah. एंड व्हाई डू यू वांट गेट वायरल. सो उनके पास कुछ आंसर ही नहीं होता. तो वो जो एक थॉट घुस गया ना लोगों को, इवन फोटोग्राफर्स आई विल से हो रहा है, सबको वो कंटेंट बनाना है, सबको ऐसे वायरल होना है. दैट इज नॉट समथिंग दैट. एंड इट इज लाइक उनको रील बनानी भी नहीं है पर बनानी भी है. हाँ, सो दैट इज समथिंग दैट आई एम नॉट लाइकिंग अबाउट वेडिंग. Yeah. बाकी एवरीथिंग इज सुपर. All good only, yeah. Still see, for wedding filmmakers there are so many myths going around कि वे wedding filmmakers ऐसे ही होते हैं, वो लोग यही करेंगे. So you must have faced something like this. So if you want to break some kind of myth about wedding filmmakers or about you, so what would it be? अबाउट मी, हाँ अबाउट मी एक मिथ है. बहुत से क्लाइंट्स का मुझे ऐसा फीडबैक आया है कि हम आपको अप्रोच ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत महंगे हो. Okay. Yeah, that is one myth that I would like to break. कि ऐसा नहीं है. If the wedding is good, if the content is good, and if I find soul in the wedding, then You would do love it. to do it. Anyhow. Yeah. वो एक myth है. और about किसके बारे में और myth बोला आपने, मेरे बारे में और? Wedding filmmakers in general, like कि वो ऐसे शूट करते हैं, ऐसे ही एडिट करेंगे. हाँ, wedding filmmakers के ऊपर यार कि wedding में इतनी सारी चीजें हो रही है. Yeah. सो किसी का देख के किसी के जैसा बनना इज नॉट गुड. मतलब मैं अपने वर्कशॉप्स में भी बोलता हूँ कि ट्राई टू नो हु यू आर. अपना स्टाइल तो डिस्कवर करो पहले. एंड वही डिफरेंट होने वाला है, That is बाकी different. नहीं होने वाला. सही. हाँ, 5 उंगली पांचों अलग है. And that's how you came into the field only. You didn't even wanted to become wedding filmmaker. That is so Yeah. surprising to me, brother. Yes. That is So crazy. हम लोग के इसने ऐसा बना, इसके जैसा ये बनाता है, चलो
उसका हिट गया तो हमारा भी हिट जाएगा. That is very नहीं, वो wrong. नहीं होने वाला है और एक्चुअली में नहीं होने वाला है. एंड द पीपल हैव रियली गुड आइज नाउअडेज. दे सी दिस थिंग के यहाँ से उठाया, यहाँ पे रखा है. Yes, and that is why I have stopped watching wedding films also. मेरे को अभी एक जैसे ही लगते हैं सारे weddings. लगता है देखा Same ही है, कर रहे कुछ ना हो कुछ. हाँ, वैसे ही होगा, वही चीजें करेंगे ऐसा. You just talk about the workshops you take, so let's go with it. The visual storytelling workshop, right? Can you tell me about it? Like, how do you approach that, and what do you impart? What is the approach for the workshop? Workshops? Yeah. So day one अभी की बताता हूँ मैं. अभी हमने 0 में किया था. Yeah. So day one was where I do an introduction round. Okay. And उसके just जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैं म्यूजिक सुनता हूँ, तो वर्कशॉप में भी मैंने वही किया था कि मैंने 5 मिनट का एक म्यूजिक प्ले कर दिया था. तो जो लोग इतने दूर से ट्रैवल करके आए सब है, तो एक वो हो गया था कि सबको फिजिकली तुम यहाँ पे आ चुके हो, पर अभी बट mentally मेंटली वो म्यूजिक 5 मिनट लेके आया सबको मेंटली. Yeah. तो वो जब एक एनवायरनमेंट बना. तो यस, आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मुझे भी सेम चीज फील हुआ. एक चीज भी इंक्लूड करके ना अपने नेक्स्ट हर फिल्म्स में आप डाल सको. सो दैट वाज द ओनली मोटिव एंड आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप आप लोग करो. फिर मैंने थियरी चालू किया. थियरी भी बहुत लाइक जब मैंने फर्स्ट वर्कशॉप किया था तब इट वाज मोर अबाउट लाइटिंग, साउंड, ये फिल्म मेकिंग का कॉन्सेप्ट, थियरीज जो होता है, लैंग्वेज. हाँ, तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि यार ये सब नहीं मतलब है कर आके. Okay. सो आई पेन डाउन थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन ऑल दिस 3, 4, 5 years. एंड वो सब बातें कर रहा था, लाइक हार्ट टू हार्ट टॉक्स फॉर. हाँ, तो उसमें पहले थियरी हुआ. थियरी में भी मोर अबाउट की डिस्कवरिंग योर ओन स्टाइल, हु आर यू, नोइंग द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा, अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दैट. वो सब बातें हमने थियरी में किया. फिर मैंने कपल को, मैं हर वर्कशॉप में कपल को बुलाता हूँ, हु आर रियल कपल, एंड जिनके साथ मैं भी फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ. Yes, so क्योंकि everything is unplanned in weddings. So what you tell them, like क्यों आ रहे हैं, मतलब बोलो क्या बोल के आ रहे हैं तुम? नहीं, उन कपल को तो पता है कि शूट करने आ रहे हैं. वेडिंग उनकी शूट करेंगे ऐसा? नहीं, हाँ, हम शूट करेंगे. just couple shoot or something. Yeah, okay. तो वो हुआ. अब इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने डे 1 में भी एक शाम का इवनिंग सेशन आउटडोर रखा. सो उसमें मैं ऐसा करता हूँ कि अगर 15 जन है तो 5-5 जन के 3 टीम्स बनाऊंगा मैं. ओके. वो टीम्स के अंदर जैसे एक्सप्लेन होगा कि क्या क्या रोल होते हैं. अब जैसे वेडिंग्स में टीम वर्क होता है. एब्सोल्युटली. या, सो इसीलिए टीम बनाया जाता है. वो टीम में सबको 15-15 मिनट दिए जाते हैं शूट करने के लिए. विद दैट कपल कि भाई तुम अपनी तरह से करो. यस, तुम्हारा जो कंसेप्ट है, जो तुमको लग रहा है, जो लग रहा है वो करो. विल गो हियर, दिस आर द आउटफिट्स, ऐसा. ओके. तो हम लोग तो फर्स्ट सेशन किया जहाँ पे वो लोग ने डायरेक्टली शूट किया कपल को, एंड वो खत्म हो गया. उसके बाद इवनिंग सेशन होता है जहाँ पे आई टेल एवरीवन दैट यू हैव टू नाउ टॉक एंड कम्युनिकेट विद द कपल, दे आर योर क्लाइंट्स. अब उसमें से निकालो तुम चीजें विदाउट आस्किंग देम व्हाट इज देयर स्टोरी. सो यस, सो सब पहले कंफ्यूज हो जाते हैं. तो व्हाट विल दे कम्युनिकेट इफ यू आर नॉट आस्किंग द स्टोरी? वही होता है, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के राउंड चालू होता है जहाँ पे लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं. Okay. कोई तो उनको ऐसा पूछ रहा है कि आप शादी करके घर जाओगे, आप सैड होंगे. भाई तो क्या ही होंगे मतलब. हाँ, तो ये सब बातें होती है. तो फिर मैं कपल से बातें करता हूँ. मैं पूछता हूँ कि क्या क्या आपको करना पसंद है, क्या है, ये सब बातें. सो फिर कपल को भेज देता हूँ और फिर वो सेशन के ऊपर डिस्कशन होता है कि क्या गलत किया, क्यों ये नहीं पूछा, और मैंने ये क्वेश्चन इनसे पूछा है, अब मैं इसका कल क्या कर सकता हूँ. सो आई टीच देम अबाउट प्री प्रोडक्शन. सेकेंड डे इज अ शूट डे. सुबह शाम शूट होगा, सेम 15-15 मिनट टू ऑल द ग्रुप्स. सही बात. लास्ट में मैं शूट करूंगा. अब उस प्रोसेस में दोनों को डिफरेंस पता चलेगा, कपल को, टीम कैसे को. कर रहे हो एंड वो नहीं, टीम को ये डिफरेंस पता चलेगा कि हम जब कपल से बात करे बिना शूट करते हैं और कपल से बात करके कम्युनिकेट करके कुछ प्री प्लानिंग करके शूट करते हैं, तो कितना डिफरेंस पड़ता है. दैट इज ग्रेट. सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट टू रियलाइज एक्चुअली. अ वेरी बेसिक थिंग, बट हम सब ये सब भूल जाते हैं. हमको लगता है ये कपल में स्टोरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो वो. एंड थर्ड डे इज अबाउट एडिटिंग. तो मेरा आइडिया ये है कि मैं कुछ भी कंसेप्ट प्लान करके नहीं जाऊंगा. मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा. 2 दिन हम पूरा 15 के 15 लोग बैठ के सब साथ में एक फिल्म बनाएंगे.
Okay. सो फुटेजेस भी सबके ग्रुप के फुटेजेस यूज होते हैं, म्यूजिक भी सब साथ में डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं मैं पहले से उधर जाके मैं म्यूजिक सोच के चला सोच गया के हूँ, जैसा नहीं है. सही सब प्रोसेस पूरा दिखाता हूँ मैं। You let it come to you, मतलब जो वहाँ पे. हाँ, तो वैसे हर एक ग्रुप से म्यूजिक निकलवाता हूँ, उसमें से हमको सिलेक्ट करते हैं, उसमें से बनाते हैं। सो इट्स द होल जर्नी सब साथ में करते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। भाई मतलब पूरी प्रोसेस बहुत सही जा रही है. Yes, yes. And how many workshops you did till now? आई थिंक ऑफलाइन मैंने 5 किया है, 5 एंड workshops. ऑनलाइन भी 5 किया है। Can you differentiate between the guy who teaches, the Romil who teaches, and the Romil who making films? When Romil is teaching, Yeah. he speaks a lot, and he speaks from heart. Okay. But when he's making films, he will never speak anything. He would let his film speak. That is the difference. बहुत सही वे में बता दिया. Yeah. And what is the best feedback you got from your workshop? From my workshop? Yeah. फर्स्ट वर्कशॉप में मुझे एक जन ने नटराज गिफ्ट किया था। नटराज इज द सिंबल ऑफ आर्ट। Yeah. तो और फिर एक अभी गोवा में वर्कशॉप किया था मैंने लास्ट ईयर, उसमें एक जन ने मुझे एक टैटू गिफ्ट किया था, लाइक लास्ट डे ऑफ द वर्कशॉप। Yeah. उसने अपने हाथ में टैटू Okay, उन्होंने अपने हाथ में टैटू Damn. बनवाया और लिखवाया था नजरिया। Okay. तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि आपसे मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा नजरिया वेडिंग्स को लेके, लाइफ को लेके चेंज हुआ है। Oh, this is great, भाई. whenever I will see this, I will I remember you कि भाई Romil. Yes. So That's crazy. that is one thing. And उसने उसके बाद से ऐसा प्रॉमिस किया था कि जहाँ भी वर्कशॉप होगा वो हर वर्कशॉप में आएगा, और वो ऐसे ही करता है, हर वर्कशॉप में आता है वो। Shit. So that is something. So brother, you do a lot of things, right? Like wedding filmmaking, editing, shooting, taking workshops. So it is like, where do you see yourself in 10 years? Like, is there something which you want to achieve? I have वो चीज़ बहुत टाइम से छोड़ दिया मैंने। Okay. I used to have जब मैं कॉलेज में था ना, I used to have a डायरी जहाँ पे मैं लिखा था शॉर्ट टर्म गोल्स टू अचीव, लॉन्ग टर्म गोल्स टू अचीव। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्योंकि ऐसे ही होता था, मुझे लगता था ऐसे ही होता है। सो लॉन्ग टर्म गोल्स में बाय अ हाउस फॉर माय मदर, बाय लैम्बोर्गिनी, गेट अ बुलेट बाय। Who doesn't want Lamborghini, right? हाँ, ये सब चीजें था, राइट। तो बहुत ही बचकानी लगी मेरे को ये सब चीजें कि यार क्या मतलब, दिस इज नॉट इट। वो मटेरियलिस्टिक चीजों से फिर तुम धीमे धीमे दूर आना होगा। यस, सो पहले ऐसा था कि मेरे डैड नहीं थे और मैं और मॉम साथ में रहते थे, तो वी यूज्ड टू स्टे अपने ऋषभ टावर देखा है? Yeah, उसके जस्ट आगे चौकसीवाड़ी होता है, Okay. उसके अंदर में छोटे छोटे घर है। Okay. तो वी यूज्ड टू स्टे देयर, 3,000 रुपये 2,000 रुपये मंथली के रेंट पे, मैं और मम्मी अकेले रहते थे। Okay. तो उस टाइम मुझे ऐसा था कि यार बहुत पैसे कमाना है, क्योंकि आई रिमेंबर कि मम्मी जॉब करती थी बुटीक में, तो हमारा ऐसा होता था कि हम लोग ज़बरदस्ती सब साड़ी लेके वहाँ पे चौकसीवाड़ी के लाइन में बहुत सारे कपड़े की दुकान है, तो हम रैंडमली ऐसे जा रहे हैं कि विल यू वांट टू बाय द साड़ी, ऐसा वैसा वो सब चीज़ें करते थे। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा गोल्स है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, ये करना है वो करना है। तब मैं पागल की तरह यही सोचता था। with God's grace, in 2 years after the COVID, 2 years or 3 years, I was able to get my car. I was able to buy a bungalow from my money. And तब मुझे लगा कि यही तो मुझे चाहिए था। But then the question was, is it? Is this really you? नहीं, is this what I wanted? Yeah. So भगवान ने क्या किया? भगवान ने बोला कि ये ले, तेरे को लगता था ये लाइफ है, था कि हाँ तो ये दे देता हूँ, तेरे को लगता है ये लाइफ है, ये ले, तेरे को दिया, अब बता अब क्या। So that was the moment it hit me. And made you question yourself, मतलब कि this is not my goal. ये तो I think सोसाइटी ने डाला है कि ऐसा ये गाड़ी होना चाहिए, घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, तो तुम्हारा तब ये दिमाग में आया कि this is not what I wanted. Okay. And now I don't look up to something that मैं 10 साल के बाद ये बनूंगा वो बनूंगा। It's just that I am trying to be in there are some things that I want to be present in the moment where I am, what am I doing, इधर ही, ना आगे का सोचूं ना पीछे का सोचूं। That is one thing I want to achieve, जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। और दूसरा कि चीज़ें करना without giving a second thought,
तो वो अब मैं कर पाता हूँ कि Execute पहले करना तुरंत ही मतलब। नहीं, अबाउट द थिंग्स दैट आई वांट कि मुझे पेरिस जाना है, मैं 10 बार नहीं सोचूंगा अभी। मुझे कुछ खरीदना है, ये नया फोन लेना है, मैं नहीं सोचूंगा। पहले ऐसा होता था कि एक चीज आपको होल्ड बैक कर रहा है, या एब्सोल्युटली। तो वो फ्रीडम मिलना तो वो अभी है, वो अचीव हो चुका है। वो पहले वाला है, वो अचीव करना यू वांट टू फील कंटेंट, लाइक बस शांति से। बाकी अभी ऐसा कोई गोल नहीं है कि ये अचीव करना है। नहीं, लाइफ इज नॉट अबाउट दैट। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बार हमको लगता है कि पैसे कमाना ही लाइफ है, ये करना, तो कमा लिया फिर क्या? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ। सो अभी मैं उस फेज से जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या, लाइक कितना कमा के यू विल बी हैप्पी, सही बात है। उसका करोगे क्या? देयर इज नेवर गोना बी इनफ, लाइक उसका करोगे क्या? सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव। दैट इज रियली वाइज थिंग टू से, ब्रदर। या And see, I have religiously follow on Instagram you, so I see you are traveling a lot, you are singing with your friends, you are partying with your friends. It feels like you are such a free soul कि बस घूम रहा है बंदा और बस मजे ही कर रहा है। तो what is like to be in Romil's head, मतलब? Freedom is the only thing that freedom and not caring about myself कि जैसे अभी मैं ऋषिकेश गया था, तो एक चलते हमने ऐसा स्पॉट देख लिया जहाँ पे गंगा नदी पास हो रही थी और एक बीच जैसा था, सैंड जैसा था। तो 7 बज रहे थे, अंधेरा होने वाला था और मेरे को एकदम से मन किया कि मेरे को अंदर जाना है। कोई कपड़े वपड़े थे नहीं मेरे पास, मैंने कपड़े निकाले, अंडरवेयर में मैं अंदर चला गया नदी में। हाँ, अरे भाई। सो दैट इज समथिंग दैट इज लाइक मी कि मुझे मजा आ रहा है, मेरे को करना है, ये करूंगा मैं। ये बंगला भी वैसे ही लिया मैंने। अब सच अ बिग अमाउंट। I was very much emotionally attached to this fact कि यार रोमिल ने अपने पैसे से घर लिया, बनाया, मतलब वो मेरे को पता नहीं दिमाग में क्यों बचपन में डाला गया होगा शायद से कि घर ले लिया मतलब बहुत बड़ा चीज है। अपब्रिंगिंग, वो वैल्यूज ही हमारे कि घर लेना है जिंदगी में। तो मैं रैंडमली मैंने बंगला भी ले लिया, एकदम रैंडमली। सो ये सब चीजें इट्स मोर लाइक दैट। आई विल नेवर थिंक टू मच बिफोर डूइंग। आई वांट टू हैव दैट फ्रीडम इन लाइफ, फ्रीडम इन एनीथिंग। So freedom for me is the Did it utmost turn thing. out good? Like ऐसे बहुत सोच के करना है फिर it's okay. Sometimes it's good, sometimes you have to pay off. Yeah, I understand that. Yeah. And what is, see, you document love for your everyday life. So what is your take on love? Like how is your relationship with your wife? It has changed over the years. We have molded our relationship. Yeah. So मेरे लिए love का concept is very simple. To give each other a space where you can be yourself. That is my meaning on love. कि कभी कभी आपको भी ये चीज फील होता होगा कि when you are with someone, around someone, कोई एक इंसान भी हो, तो आप शायद आप जो हो उससे कुछ 1-2% तो प्रिटेंड करते ही होंगे किसी के सामने। And that never stops. That never stops. But imagine yourself in a room where you're not even wearing clothes. You are naked. And at that time, आपके रूम में कोई नहीं है, but you are at your truest and vulnerable self. Now who are you? Like that is your vulnerable self. And वो चीज आप एक इंसान के साथ वो स्पेस मिलना कि आप उसके सामने आपको नाटक नहीं करना पड़ रहा, उसके सामने आप जो हो, जैसे हो, जो अकेले में हो वैसे बन सकते हो. That is being truest yourself with your significant partner. That is love for you. Yeah. And one more thing that I believe is कि हम लोग we all have our individual journey in life. Absolutely, brother. Yeah. जब दो इंसान लव में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हमारी इंडिविजुअल जर्नी हमें. सो लव शुड बी लाइक दैट यार. तुम दोनों अपनी इंडिविजुअल जर्नी कर रहे हो और साथ में भी हो, तुम थक रहे हो तो तुम किसी के साथ हैंग आउट करो, चिल कर रहे हो कि अच्छा यार मैं थक गया, बहुत चल गया, अब थक गया, चलो वापस शुरू करते हैं, तो अपना जा, मैं अपना जाता हूँ. दैट इज मोर लाइक लव टू मी. Yeah, so it is this kind of your love language with your wife only, right? Yeah, it's How many years you have been married? 22, 23, I guess. 23. I don't remember. I think 22. हर बार भूल जाता हूँ. This is gonna be crazy, भाई. This is gonna be crazy. हर बार भूल जाता हूँ मैं. I'm gonna cut this and I'm gonna put this shit out of the. 23. You gotta say something to पूजा, मतलब अभी तो. उसको पता है, उसको पहली बार नहीं हुआ. अच्छा, होता है हर बार, उसको पता है, मैं भूल जाता हूँ. So yeah, 29 January is the date. Okay, yeah. Okay. But 22 शायद. No, it's all good, brother. It's no worry.
मैं being me, मैं बहुत dates बोलता हूँ, तो this doesn't come new to Exactly, me. yeah. I'm okay with it. And see, you have started this page Noir by Romil Shah, right? Tell me about it. Like, how do you approach people? How do you approach models or the girls? And how do you I shoot don't them? approach a lot of models. Okay. I try to shoot more real people. Okay. And अब ऐसा और मतलब I started with models because I wanted to explore boudoir photography. Boudoir photography. And then that was the time when I approached a model, and we went. I was very much conscious. Oh, no, that was not the first time that boudoir happened. Boudoir happened way back जब Noir था भी नहीं. Okay. I was in Goa shooting a wedding, and there was this. वो होता है ना सिंधी वेडिंग में बहुत सारे रशियंस लोग आते हैं. Yeah. हाँ, तो there was this Russian girl, उससे दोस्ती हो गई मेरी. Okay. तो मैंने उसको, मेरे पास एक दिन था, तो मैंने उसको बोला कि do you want to shoot something? She was very welcoming. She invited me to her place, and then we shot. And then I asked her कि are you interested in doing a boudoir with me? And she was like, yeah, why not? That's how boudoir happened. That's But how it started. No? It started, but तब Noir हुआ, तब कुछ नहीं हुआ था Noir चालू. Okay. And then I enjoyed it, and I was a filmmaker, but that was something that brought me to photography. Photography, yeah, man. Then I started exploring lights and shadows. एकदम ये जो filmmaker में उतना नहीं होता, but photography में थोड़ा ज़्यादा depth में जाता है. Absolutely. ये सब चीजें, तो that excited me. Then जब मुझे वापस से करना हुआ, then I approached a model. Okay. And then उसके बाद से people approach me. जहाँ मुझे कभी मुझे फायदा लगता है कि कहीं से मुझे हो जाएगा, तो मैं उनको अप्रोच कर लेता हूँ. Okay. Since still, how do you make them comfortable with yourself over there? Just giving them a space and To be themselves. to be themselves. Yeah, okay. Because initially it's very like for the non-models it's very difficult. I understand that, yeah. I have had a lot of females who wanted to do a nude photography Yeah. with hidden face. Okay. Because either they were too conscious about their body, or Either they didn't want to show their face. yeah, because they're not confident, and also we are in India. So ये दो चीजें होती थी, but they wanted to explore nude photography because I remember एक लड़की का मुझे आया था कि I love how you show women so beautiful. Yeah. I wish you can shoot me someday. Okay. That is what she said. And then when I shot her, and she was a very normal girl, ऐसा कोई model नहीं थी, very normal girl. जब उसको मैंने उसका पहला फोटो दिखाया, she started crying. Man. And I asked her what happened. She like, I've been always bullied in my college and bullied in for my physical Appearance and body and appearance. everything. Yeah. But I have never seen myself this beautiful This so beautiful. many years. And that was like, okay. Man, that is something that must have moved you so much. कि Yeah. भाई मैं जो So कर रहा इसीलिए हूँ मॉडल सही से कर अच्छा रहा हूँ. लगता है. सो मॉडल्स में कैसा होता है, एक प्रॉब्लम होता है कि मुझे ऐसा पर्सनली पसंद है कि मैं कोई म्यूजिक चालू कर दूंगा, सामने वाले इंसान को अपने उस एलिमेंट में आने दूंगा, Zone में, हाँ, सब भूल के एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है ना उस टाइम पे Yeah. कि वो बहुत, तुम ऐसे स्टेट में चले जाते हो कि तुम यू आर न्यूड, यू आर इन योर आर्टिस्टिक जोन, यू आर इन ऑल दैट थिंग. तो बहुत ब्यूटीफुल होता है. तो उस टाइम पे मैं कभी ज्यादा गाइड नहीं करूंगा सामने वाले को. आई लेट देम बी. बट मॉडल्स के साथ ऐसा होता है ना कि दे नो कैमरा शूट हो रहा है, दे नो कि मेरा ये एंगल अच्छा आ रहा है, ये एंगल अच्छा आ रहा है, तो मैं Because they do that for living. मैं थोड़ा ऐसे करूंगी, मैं थोड़ा बॉडी को ऐसे, उनको पता होता है. सो दैट इज नॉट अलाउिंग देम टू फ्लो इन दैट स्टेट. Yeah. बट व्हेन इट्स नॉन मॉडल्स दे जस्ट फ्लो. क्योंकि उनको वो पता भी नहीं है, they didn't do that for living. वो जो अपने लिए कर रहे सो हैं. दे फ्लो, और वो फ्लो में मजा आता है. Man, that is something I really wanted to ask कि ये कैसे zone में you enter and then you come out. Yeah, so ये music really helps. Absolutely. And not invading each other's private space. Yeah. कि कोई अगर एक जोन में घुसा हुआ है, तो मैं अगर ऐसा बोलूंगा कि अरे एक सेकंड थोड़ा सा इधर देखो, थोड़ा सा उधर रखो, बॉडी ऐसा करो, तो वो कट हो जाएगी वहां से. और वो पोजिंग नहीं करवाना है वैसे भी. I never see on your page के यहाँ पे पोज करवाना. तो वो उनको जाने दो स्टेट में. That is very interesting. और उस टाइम पे मैं भी एक जोन पे चला जाता हूँ when I'm shooting. Absolutely, man. So that is very beautiful. What kind of a music you play? I play a lot of background music. Like instrumental? From maybe any Hans Zimmer kind of? I love Hans Zimmer. Yeah, man. He's damn good. But depending on the mood, अगर मुझे थोड़ा सा मैं sexual चीजें shoot करूँगा, तो I'll play a lot of
sexual violin and all of Okay, that. okay. Saxophone or something. if I want to do some emotional shoot, तो फिर I have a lot of I have a lot of playlists in my YouTube music. Man, if you like to, please give them to us. मतलब we'd love to I am very possessive about explore. अरे damn man. But I hope someday. yeah, I'll share one or two. But पूरा playlist नहीं. नहीं वो I understand. Sharing a playlist is very It's very intimate thing. yeah, it Even I don't like to do that, man. I don't even do that. Yeah. You should not. It's very इतना मुश्किल से तुमको और हर एक सॉन्ग के साथ इतनी मेहनत करके साला एक प्लेलिस्ट बनती है. आई रिमेम्बर मैं भी शोजा में था तो वहाँ पे रात का 10 बज रहे थे एंड बहुत प्यारा ऐसे मून था. Okay. बहुत फुल मून था, बहुत नजदीक था, ऐसे बहुत बड़ा लग रहा था. तो मैं जहाँ पे रुका था उसका जस्ट सामने एक क्लिफ जैसा है. तो वहां से मुझे मून दिख रहा था एंड मैंने ऐसे रैंडमली सॉन्ग चलाया हुआ था मेरे फोन में और वो बज रहा था. और उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, इतने सारे अच्छे सॉन्ग्स बजने लगे तो मैंने सारे सॉन्ग को एक प्लेलिस्ट में डाला और वो प्लेलिस्ट का मैंने नाम रखा चांद के साथ मेरी डेट. सो इट इज दैट I understand. इंटीमेट कि Is वो that personal मतलब? हाँ, तो वो मोमेंट पे मैंने कम से कम 8-10 सॉन्ग उसमें सेव किए. तो whenever I listen to that song उस प्लेलिस्ट में तो ऐसा कनेक्ट हुआ कि यार उस टाइम पे मैं ये फील कर रहा था. Like if you have to imagine or if something comes at you right now at this very moment, what kind of a song comes to your head? If the background or something. We are doing a podcast right now and There is this song Stillness by Vaivu or something. It's WIEWU. okay. Yes, so that is a song that I listen, a music that I listen a lot. Okay. So, yeah. Absolutely. Man, I'm gonna ask you something. If you are not comfortable, you can choose not to. No worries No, about I'm it. comfortable. You mentioned once or twice. I want to ask you what is like, matlab, what happened with your father and what is like not to be around him. So my father and my mom got divorced when I was in 9th standard. Man, I'm so sorry to hear that. No, it's fine. It was for good. Okay. Yeah. So तब से me and my mom are living by together. yourself, yeah. And इसीलिए मतलब that was the reason we shifted to a rented apartment and Okay. वो सब 2-3 हज़ार वाला रेंट पे रहना ये सब इसीलिए हो रहा था. And my mom was doing a job. ये सब हो रहा था. फिर I mean, what was the question? Yeah, this is what happened. I mean, divorce. No, is I what understand what it is like to be not around with your father. Yes. Yeah. When you were Like you were very young, na 9th standard. yeah, तो yeah, कुछ भी नहीं. हाँ, तो ये होता था. Like when you're in that phase, Yeah. when you want to look up to someone. That's what I'm talking हाँ, about. मतलब Exactly. Yeah. मुझे ऐसा होता था कि यार मुझे जैसे अभी भी मुझे बिजनेस करना नहीं आता है. Okay. तो मुझे तब भी होता था यार मुझे पैसे कमाना है, मुझे बिजनेस करना है, पर मैं किसको लुक अप करूँ कि ऐसे बात करेंगे. Father figure. Yeah. हाँ, एक होता है ना कि ये मॉम यूज्ड टू वर्क बट एक होता है ना कि यू वांट टू लुक अप टू अ गाय फिगर हु जो एक होता है वो बात करते हैं तो बिजनेस के लिए तुम सीखते हो देख के. तो वो सब और वो बोल सके आपको कि भाई ये नहीं करना ये एग्जैक्टली तो वो सब बहुत मिसिंग लगा मुझे. बट देन माय मॉम रियली सपोर्टेड एंड मोटिवेटेड मी एंड आई फेल्ट दैट आई नेवर नीडेड अ फादर. फिर उसके बाद Man, I'm sorry if I crossed my any bound, but it's all good now. It's all on this. अच्छा हुआ यार उसके बाद. Okay. Tell me more about Musafir by Roja. How did that happen? Like it is something so out of your zone. Yeah, it is all the credits to Pooja, not me. Okay. So हम दोनों का अपने लाइफ को लेके ऐसा विजन है कि I want to go settle in mountains and stay there. Okay. Yeah, this is a tattoo that says पहाड़ों में मेरा घर. Okay. Yeah. So and that's why you take your workshops around mountains. Yeah. I love mountains. Man. So that was the goal कि मुझे एक जगह रहना है बस. I want to stay there. पूजा का गोल था कि she wanted to move. Keep moving around and traveling. Yes. तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि ठीक है मैं मेरा कैफे बनाऊंगा माउंटेन में तू अपने कैरावन लाइफ से आना कभी मुझे मिल के जाना कॉफी पी के जाना. ऐसे हम लोग बातें भी करते थे. तो this was her dream. Okay. So she thought of making a caravan for herself. Then we came up with this idea कि एक रेंटल चालू करते हैं. हम पूरे दिन तो घूमेंगे नहीं काम भी करेंगे. So we made a big caravan. That's how Musafir happened.
But a sad story that we sold it off recently. Oh man, I didn't know that. Yeah, recently we sold it off because we both are from that background कि हम लोग अपना attention पूरा नहीं दे पा रहे थे. Okay. So that is You the couldn't reason. give so much time नहीं to नहीं दे पा रहे Musafir, थे. yeah. और उसको कोई भी बड़े कैरावन को you need maintenance ये वो सब चाहिए होता है. अच्छे से time थोड़ा time तो देना पड़ता है. And did you get clients for that? Like people were excited about it? Yeah, they were excited. They loved the concept. Yeah, I understand. फिर पूजा ने बीच में एक ये भी चालू किया था कि a trip with 8 to 9 stranger people. Like उसने कैरावन में she was the host and she ऐसे अलग अलग लोग आए थे वैसे वो लोग. That sounds- हाँ, that was fun. Yeah, actually. Yeah. फिर मुसाफिर ने फिल्म की भी शूटिंग की है एक. अच्छा. Yes. Which one? मेरे एक फ्रेंड है अंकित करके. Okay. जिनका अभी मूवी आया लालो. Yeah. हाँ, so the director film का he's my Oh friend. shit, man. Okay. Yeah. And so he wanted my Musafir in his To music rent it video. out and yeah. हाँ. Okay, Romil, if you like to give some kind of advice to the upcoming wedding filmmakers, what would you say? ज़्यादा टाइम शूट करने से ज़्यादा आई मीन शूटिंग फॉर द मनी मतलब वो भी रॉन्ग टर्म हो जाएगा बट ऐसा टर्म कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जो सीखने से पहले ज़्यादा फील्ड में उतरना चाहते हैं. सो वो एक टाइम है that give time to yourself, explore what is your style, who are you even enjoying wedding filmmaking? Yeah. Don't do it for money, like. Yeah. As initially, Yeah. at least give that time to know yourself and stick to that thing. मतलब जैसे मुझे बहुत बार होता है कि अभी यार इतना फास्ट ट्रेंड में मैं बहुत स्लो फिल्म बनाता हूँ तो मुझे वही होता है बट आई वांट टू स्टिक टू माय जो लोग हाँ बिकॉज द पीपल हु वांट यू विल वांट यू. और वो कभी वो अप्रोच ऐसे मतलब मांगे बोलेंगे भी नहीं कि अभी मुझे फास्ट कट चाहिए. हाँ ऐसा हुआ था एक क्रिश्चियन वेडिंग था क्रिश्चियन हिंदू वेडिंग और चर्च में वेडिंग था और बहुत अच्छा ऐसा लोकेशन था ये वो तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ मैं क्रिएटिव बनाऊंगा. सो मैंने बहुत फास्ट कट्स और ये यू नो ऐसा इस टाइप का फिल्म बनाया बट दे कॉल्ड मी एंड ही वाज द ग्रूम वाज लाइक मुझे पता है आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ. दिस इज व्हाट ही सेड. मेरा मतलब दिस इज अ जोक यू आर गोइंग टू सेंड सम अदर वेडिंग फिल्म राइट. मैन तो मैंने तो दैट वाज वेरी मच उस टाइम मुझे हिट हुआ कि उसने बोला कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ क्रिएटिव स्टफ इन दिस थिंग बट आई वांट टू लुक एट रोमिल्स फिल्म एंड आई वांट टू क्राई आफ्टर 10 years ऑफ my wedding. Yeah. So तब मुझे realize हुआ कि let me even if it's simple even if it's slow let me Yeah, stick to my let style me stick to your rather than and you literally make it like timeless wedding films. It is not like कि बोर हो जाएंगे हम मतलब मेरी तो शादी भी शूट नहीं हुई है पर मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं ये बहुत प्यारी चीज है. yes And that is something I really love. so this is the advice just to you know stick to yourself. Yeah पहले discover करो and then stick to yourself. Yeah. Absolutely man. See I have one last segment. It is kind of a fatapat rapid fire round. So you give your answer and I will take my phone for it. You give your answer whatever you like. Okay. Don't think so much like you Okay. do it. Okay. So okay, who is Romil without a camera? Traveler. Dream destination to shoot a wedding? Italy. Lake Como or something? Maybe yeah but Italy in general. In general. Okay. First camera you have ever used? Nikon 3200 yeah. Okay. One film that changed your life? Wedding film or Yeah. Oh, in general you can say. I don't mind it. changed my life Tamasha. Okay. And wedding film? Wedding film would be Hiba Akbar by House on the Clouds. Man, I love that man. Yeah. If you have to select one option from this, only shooting and only editing, which one would you pick? Can't choose. I understand that. One wedding filmmaker you admire so much, you look up to. Wedding filmmaker. Yeah. House on the Clouds. Chitresh Mishra. Siddharth. Total Siddharth. Yeah. Absolutely. If you could relive one shoot, which would it be? Relive. Yeah. It would be. No, I can't think of anyone. It's And I don't want to answer अगर मेरे mind में तुरंत नहीं No, आ I रहा. understand that. No Yeah. issues. Biggest red flag in client? If they want to do it for the trend. Okay. Favorite photo or favorite film you ever edited or took? Favorite? Photo or a film?
of yours? Favorite film would be, I told you, Bhavisha and Happy Sad Feeling. Okay. Yeah, and favorite photo. No, as a favorite can't think of. You took photos in weddings or not? I sometimes You take. I You sometimes you take. Okay. One word, if you can describe Romil Shah films, which would it be? Romil Shah films. Yeah. Art, emotion, story. And Noir by Romil? Noir by Romil would be a space of liberation and freedom. Okay. Is there something which stays with you 24/7? A thought or a like a quotation or something which stays with you, or a memory? A memory that stays Yeah. with me in personal life, or Yeah, in general, like with you, with work, with personal life, whatever it is. with work there are many. When the client has cried, they have given a handwritten letter, they have Yeah. shared their personal things and all of that. That happens very often. So I cannot pick one. I understand that. And in personal life, it would be, I think, me and my mom taking that first Goa trip. Yeah, man. Yeah. One thing, you can't go to bed without doing it. Without scrolling reels. Guilty. Everyone is guilty about that, na man. Yeah. So okay, to wrap this podcast, if the world is listening to you right now, all the filmmakers, all the people, everyone, what would be the last thing you would tell everyone? Last thing and the only thing I would tell everyone is that you have one life, do whatever you feel like, dance, sing, and just create art. That's it. Let's go, man. Thank you so much for Thank coming you and so getting much. bed with me, man. Thank you I so hope you much. like this. Likewise. And we will see with another person with another story in bed next time. Yes. Thank you so much. Thank you.